per month. हाँ. Per month I make around That's what yeah, it's maximum, happening. yeah. Okay. So like I made my first $1,300 और उस दिन से there was no stopping back. Like Wow. वो like then I hit my first lakh as a freelancer January में, right? So I was like अब तो इसके नीचे नहीं जाना. एक I close पुणे based client 20,000 का per month and एक I close Delhi based client 30,000 per month, right? और one I close again at 20,000. आज की हमारी गेस्ट है श्रुति लोहरेवाल, a girl from a tier 3 city who shifted to Mumbai 2 years back with just 30,000 in her bank account. And today after 2 years she makes 2.5 lakhs every month as a freelancer. पर अब क्वेश्चन ये है कि कैसे श्रुति ने उनके पेरेंट्स को मनाया मुंबई शिफ्ट होने के लिए, एंड वो डिसीजन फिर राइट प्रूव भी कर दिखाया. क्या फाइनेंशियल चैलेंजेस आए उनके जर्नी में जब वो अकेले शिफ्ट हुए थे मुंबई, हाउ शी इज लिविंग इन मुंबई विद 2.5 lakhs every month, and most importantly how she is making this much amount of money at the age of 19. तो चलो शुरू करने के पहले अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. तो चलो स्टार्टिंग द 24th एपिसोड ऑफ द आर्ट ऑफ मनी इन 3, 2, 1 गो. Hey guys, so today we have with us Shruti, and finally after a long time, Yes. Shruti, the whole community welcomes you today, Thank you so much. and we are like, to be honest, like you are one of the person in the freelancing space जिसे मैं काफी टाइम से invite करना चाहता था. Thank you. And now you're finally here. So आपको कैसा लग रहा है Art of Money show पर आकर? It is, to be honest, my first offline podcast that I'm doing. I've done online podcasts with people before, so like a little nervous as well, but yeah, like really excited. I was really looking forward to it. Wow. So this is a fun conversation, to be honest. Yeah. It's like you can just be free. Yeah, absolutely. And okay, so the first question is, how was it growing up? So was it with money or was it without money? So how was it? Okay, so like I have grown up in. So I'm the eldest person in my family. Okay. Like I have 2 younger siblings, and like I grew up in a very middle class family. Okay, so like lower middle class I would say. So जो घर का बड़ा बच्चा होता है, that person knows, अगर वो नहीं भी बता रहे पेरेंट्स सबको शो नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि how is the condition of the family. And तो I always accommodated my needs according to how it was. I studied in a Hindi medium school. मेरे दोनों भाई बहन like they were studying in a English medium school. So वहाँ पे भी एक distance था क्योंकि मेरी फीस होती थी literally महीने के 200 rupees. And जहाँ मेरे भाई बहन का 1200, 1300 they were paying, right? So like I always accommodated my needs accordingly. मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स होते नहीं थे बिकॉज लाइक ऑल ऑफ द मारवाड़ीज का यूजुअली आप सुनोगे तो बस समझ में आएगा नहीं रिच फैमिलीज है, राइट? सो वो चीज़ है. बट तो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल होते थे वो सारे, तो वो लोग मेरे को इन्वाइट नहीं करते थे like parties में and stuff like that. So like always did not had like a friend circle वैसे, and yeah, it was without money, like I would say. मेरे मम्मी पापा ने कभी भी कोई नीड्स को वो नहीं किया कि हाँ जो जरूरत है वो डेफिनेटली कभी मना नहीं करेंगे. But then I knew कि okay, like this is not the kind of lifestyle I want for myself growing up. तो I wanted, तो वहीं से मेरे अंदर वो चीज़ आ गई थी कि I want to somehow make my own money. तो मैंने धीरे धीरे खुद से फिगर आउट करना शुरू, बहुत हाथ पैर मारे लिटरली मैंने. लाइक आई यूज्ड टू ट्यूटर किड्स. मैं 10th में थी तो आई यूज्ड टू ट्यूटर 8-9 के लोग, राइट? तो उससे आई यूज्ड टू अर्न लाइक 1,000 रुपीज अ मंथ. बट वो मेरे लिए इतना बड़ा अमाउंट होता था, एंड मोर देन अमाउंट आई वुड से वो मेरे लिए अ सोर्स ऑफ फ्रीडम होता था कि ये 1,000 रुपए में मम्मी पापा क्वेश्चन नहीं करेंगे कि व्हाट डू आई बाय. तो मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, लाइक लिटरली लाइक आई वांट, हर दिन मुझे एक नया कपड़ा चाहिए, ऐसा वाला सीन. तो आई वाज लाइक अच्छा इससे मैं कुछ भी ऑर्डर करूं मम्मी पापा मना नहीं करेंगे, राइट? तो वो 1,000 रुपी यूज्ड टू एम्पावर मी सो मच कि उस दिन से मेरे लिए मनी का वो ही चेंज हो गया. देन आई ऑल्सो लाइक हैड अ गिफ्ट हैम्पर का बिजनेस, तो उससे भी थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग. बट देन हाँ वो लोअर अमाउंट में ही था, बट देन दैट अमाउंट वाज माय ओन. तो या लाइक आई स्टार्टेड अर्निंग एट लाइक अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइक अराउंड 15, बिकॉज मेरे को शुरू से पता था कि अगर मुझे खुद के लिए कुछ करना है तो मुझे खुद का पैसा बनाना शुरू करना पड़ेगा. Wow, that's so perfect. Now, like then what value did money added to a life of a girl? जो एक, can we say tier 3 city? Yeah, like tier 3 village है. Village है, okay. So tier 3 place से जब आप tier 1 city में आते हो, like Mumbai. So a girl who shifted without money. Yeah. Again with some commitments, but again a very less amount of money. And when now if you see after, if I'm not wrong, 1 साल हो गया रहेगा, 1.5 साल. So in that 1.5 years after, that girl who shifted without money is now making enough amount of money, we'll discuss about it, but enough amount of money जहाँ से she can
legit live a really good life. Yeah. मतलब मैं कह सकता हूँ whatever amount you're making right now is like मुंबई में 20% 30% लोग ही उतना पैसा बना रहे हैं every month. Yeah. Now you shifted to that place. Yeah. So what value money added? See, Exactly. मैं जब आई थी ना तो like I don't even recognize the person जो मैं उस टाइम थी और अभी थी. As like we were discussing and you told कि वो personality shift हो जाता है पूरा. That of course happened like cause so basically when I shifted like I was making around 25,000 20,000 a month. जिसमें मेरा कट टू कट खर्चा चलता था कि अगर इसमें से 1 रुपया भी कहीं चला गया ना तो अब वो लाइक लाइफ एंड डेथ वाला सीन हो जाएगा कि क्या करूँ अभी ऐसा वाला सीन. आई वॉज ऑल्सो अंडर तो आई हैव लाइक मेरे बचपन से ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे बट लाइक व्हेन आई एंटर्ड इनटू द ऑनलाइन कम्युनिटी आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स लाइक मतलब लिटरली अभी मेरे पास ऐसे दोस्त थे कि मैं उनको कॉल करके आज बोलूँ ना भाई मैं ब्रोक हो गई हूँ मुझे इतने पैसे भेज बिना क्वेश्चन के मेरे पास पैसे आ जाएंगे. Wow. Right, I've made such connections and they are professional connections. Yeah, like, professional. Or like I don't have मेरे school college friends से मेरा कुछ touch नहीं है. I just have like one जो मैं वही बस वही और कुछ नहीं है. College और school का कोई है ही नहीं अभी. राइट तो प्रोफेशनल कनेक्शन मैंने इतने बनाए थे टू बी ऑनेस्ट. तो मैंने उनसे भी सपोर्ट लिया था तो लाइक आई हैड डेट्स आल्सो एंड हैड फैमिली कमिटमेंट्स आल्सो सारी चीजें थी. और मुझे ये चीज तो रियलाइज पहले से ही थी कि उन पे तो रिलाई नहीं कर सकती. लाइक आई डोंट वांट टू प्रेशर देम. अगर मैं यहाँ पे ब्रोक हूँ तो उनको कॉल नहीं जाना चाहिए मेरे साइड से कभी कि पापा पैसे नहीं है भेजो. राइट जबकि मना नहीं करते कहीं से भी देते करके अल्टीमेटली दे आर पेरेंट्स. बट मेरे को खुद से वो था कि नहीं यार दिस शुड नॉट हैपन. मैं खुद का गलती का सजा उनको कैसे दे सकती हूँ. राइट सो दैट वाज लाइक द केस शुरू से. आई वॉज वेरी अडामेंट कि मुझे नेक्स्ट ईयर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है और कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है तो मुझे कैमरा या आईफोन चाहिए. मैं उसके बिना नहीं शुरू करूंगा. हाँ, you mentioned that in one of the reels as well, हाँ, right? मैंने वो डायरेक्ट किया ही था कि यार मैंने पहले ट्राई करके देखा है नॉर्मल फोन और वो सारी चीजें लोग भाव नहीं देते और कंटेंट नहीं चलता. चाहे जितना ही बोल लो तुम स्टार्ट कर दो एक लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन करना होता है. स्टार्टिंग में वो नहीं होता होगा मतलब चल जाता होगा अभी तो चाहिए क्वालिटी इज क्वालिटी. हाँ तो मेरे को वो आई वाज अडामेंट. तो मैंने वो रख रखा था गोल कि मुझे नेक्स्ट ईयर आईफोन खरीदना है. राइट तो दिसंबर में मैंने बहुत वापस क्लाइंट्स आउटरीच और सब कुछ करना शुरू कर दिया. जनवरी में क्लोज वन ऑफ माय बिगेस्ट डील्स टिल देन लाइक व्हिच वाज अराउंड $1,300 per month. दैट वाज माय बिगेस्ट डील. उतना बड़ा मैंने आज तक क्लाइंट्स क्लोज नहीं किया था. आल्सो फॉर द फैक्ट बिकॉज़ व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल टेक कोर्सेस और उनका ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव अ मेंटर अगर मैं आपको हेल्प करूंगी तो आपको जल्दी हो जाएगा ना. बट मैंने खुद से फिगर आउट किया सब कुछ. आई हैव टेकन कंसल्टेशंस फ्रॉम पीपल. मैंने फ्री लोगों से बात करके चीजें निकाली और किया उसको इम्प्लीमेंट. बट मैंने कोर्सेस नहीं लिया तो मुझे टाइम लगा थोड़ा उस स्टेज पे पहुंचने पे. तो लाइक आई मेड माय फर्स्ट $1,300 और उस दिन से देयर वाज नो स्टॉपिंग बैक. लाइक वो लाइक देन आई हिट माय फर्स्ट लाख एज अ फ्रीलांसर जनवरी में. राइट तो आई वाज लाइक अब तो इसके नीचे नहीं जाना. ऐसा वाला सीन हो गया था. अब 1 लाख है तो उतना तो मेंटेन करना ही है भले 80 तक चली जाओ उससे नीचे आई डोंट वांट टू गो. राइट तो आई बॉट माय फर्स्ट आईफोन फरवरी में. आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन इन मार्च. मेरा 3 महीने में आई रीच 30K फॉलोअर्स. तो कंटेंट बूम होना शुरू हो गया. तो आई सॉ कि यार सब तरीके से मेरे साथ अच्छा हो रहा है ना. आई जस्ट वांट टू गिव माय बेस्ट. राइट तो देन दिस ईयर अभी ऑफ कोर्स सेम ईयर चल रहा है तो आई स्केल्ड इट टू फ्रॉम 1 लाख टू 2.5 lakhs नाउ अ मंथ. हाँ which is like now I don't imagine myself going back. मेरे को अगर अभी भी लगता so this is a thing जब आपके पास बहुत आ जाता है ना तो आपको fear of losing बहुत लगता है कि what if सब कुछ अचानक से चला गया तो हम कैसे मैनेज उस जगह पे so you have seen that horror of being that person right. आपको उस जगह पे वापस नहीं जाना होता right. so what happen is जब ऐसा fear आता है so आप क्या करते हो अपना ज्यादा एफर्ट्स पुश आउट करने लगते हो. like अगर मुझे एक रैंडम दिन आया कि यार what if this client goes suddenly और मुझे ना मेरा intuition is very strong तो मुझे समझ में आने लग जाता है अच्छा this is going to happen with me. तो उस दिन से तो आई स्टार्ट पिचिंग. अभी भी ऐसा नहीं फेजेस नहीं आए. अभी भी आया था लाइक दिस अगस्त में आई वाज अगेन बैक टू 30,000 a month. Oh my God. 1 lakh से 30 right because I made some bad business decisions. I partnered up with someone और चीजें हुई थी और AI वाला चीज आ गया था उस टाइम तो बहुत सीन हो गया था and I made it big in my head right. तो बहुत सारा उसकी वजह से भी आया. It was not like कि एक बार ग्लैमरस हो गया तो ग्लैमरस ही रहा. वापस 30,000 पे आई मैं राइट. बट उस दिन से like straight 4 days I'm telling you I did not sleep. दिन रात को अचानक मैं एक घंटे तक रील स्क्रॉल कर रही हूँ फिर अचानक 10 लोगों को आउटरीच कर रही हूँ फिर सो नहीं रही रो रही हूँ फिर 10 लोगों को आउटरीच कर रही हूँ ऐसा वाला. एंड ऐसे करके उस दिन लाइक जिस 4 दिन सोई नहीं 4th डे पे आई क्लोज लाइक अगेन $1,000 का क्लाइंट. तो मेरे साथ ये है कि मैं जब एकदम डाउन में जाती हूँ ना उसके बाद मैं डायरेक्ट अप में जाती हूँ. ऐसा वाला चीज हो जाता है राइट.
तो या लाइक तो उसके तो नाउ आई नो कि अगर सब कुछ चला भी जाता है तो आई हैव ब्रॉट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो अगर अभी भी मैं 0 पे जाऊं तो मैं वापस उस लेवल पे पहुंच जाऊंगी. Wow, so you mean to say कि like what value money added is to give you a freedom? Yeah, absolutely, freedom, and then it also like made me free of my fears. I would say कि ठीक है यार, अगर 0 पे पहले जैसे होता था कि अगर मैं 0 पे हूँ तो मैं ऊपर कैसे जाऊंगी, अब ऐसा है कि ठीक है अगर मैं 0 पे भी हूँ तो आई हैव दैट केपेबिलिटी. सो मनी गेव मी मोर कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि ठीक है यार, अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आई हैव नो मनी, आई एम ब्रोक, आई स्टिल नो वेज टू मेक मनी एंड आई कैन सर्वाइव. Wow. Right? Also, it like expanded my mindset कि पहले होता था कि नहीं इसमें खर्चा नहीं करना है, उस पे खर्चा नहीं करना. So I was not spending anything on my PR. And then I realized how important it is. पहले लगता था क्या कर लूंगी मैं एक आर्टिकल में आके या ऐसे वैसे, इसमें पैसे करके क्यों करूँ, अपने कैपेबिलिटी पे करूंगी. But then at certain level I understood कि नहीं, this is important, so I need to spend here. पहले I used to like travel from trains. Like कि ठीक है यार पैसे बच जाएंगे, फ्लाइट का कौन 7,000-8,000 रुपए देगा. But now तो I'm like convenience and comfort is more. I want to save my time. उस टाइम पे मैं अपना क्लाइंट वर्क लीव लूंगी, उससे पैसे कटेंगे, इससे अच्छा मैं फ्लाइट में जाना देके आई सेव माय टाइम. सो अभी वो माइंडसेट हो गया. सो दीस थिंग्स ऑफ कोर्स. सो आई थिंक लाइक व्हाट मनी मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरे लिए भी इट्स द सेम कि लाइक व्हाट वैल्यू मनी एडेड इज एक्चुअली आप जब पैसा कमाते हो ना, सो आपके साथ ये होता है कि जब आप पैसा कमाते हो तो आपका ना माइंड, और जब पैसे बनते जाते हैं सो टाइम के साथ आपकी ना चीज माइंडसेट ही बदल जाता है. बिकॉज जैसे आप सिर्फ पैसे को पहले एज अ नीड देखते थे, देन यू स्टार्ट टेकिंग मनी एज अ टूल. कि नाउ इट्स अ टूल to get access to almost everything which will give me happiness. But again more of it's like आप अभी everyone जैसे आप ladder चढ़ते जाते हो, so money अगर आप आज एक level पे हो, then you see अच्छा ये अब ये person के साथ अब अभी इस level पे जाना है. So money is a tool to go there, one of the tools. Absolutely. To give you freedom, to give you proper mindset and everything. Money mindset is making very different now. Because मैं जब बड़े entrepreneurs से बात करता हूँ, वो मुझे ये बताते हैं, and I think वो मेरा भी mindset है वैसा, या हम लोगों का ऐसा बन गया है, that we want things very fast. Patience नहीं है हमें. And it's like जब मैं राजीव तलरेजा से बात कर रहा था recently, he only told me कि आयुष, people of your age, आपके एज में से जो पर्सन पेशेंस के साथ एक काम अगले 5 साल तक करेगा, या तुम जो भी सोचो, जैसे मैं भी राइट नाउ ब्लॉक भी बिल्ड कर रहा हूँ, या हम जो भी चीज, अभी मैं आर्ट ऑफ मनी बिल्ड कर रहा हूँ, तू ये सोच 5 साल मैं इसको डेडिकेट कर रहा हूँ. एंड जस्ट यस, थिंक अबाउट एफर्ट्स, थिंक अबाउट रिजल्ट्स, बट इतना नहीं कि रिजल्ट तुम्हारे लिए तुम्हारे एफर्ट से इतना अटैच हो जाए कि एफर्ट, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो एफर्ट का कोई सेंस नहीं है. सो इट्स लाइक पेशेंस रखो, एफर्ट्स मतलब पेशेंस रखो रिजल्ट आने में, बट डोंट कीप पेशेंस कि तुम एफर्ट्स डाल रहे हो. ओके, दिस इज नाउ इट्स एन एंटरटेनमेंट सेक्शन. वी आर एंटरिंग इनटू द एंटरटेनमेंट सेक्शन ऑफ आर्ट ऑफ मनी. सो स्टार्टिंग मनी कन्फेशंस नाउ. Okay. So अब क्या है मेरे पास? So this is a particular एक list of questions I have in my. So आप लोगों को नहीं दिख रहा but वो सामने है अभी हमारे. So it's like a set of questions. Yeah. You have to answer it kind of rapid fire round, फटाफट. ठीक है? I'll ask you. It's a money confession. So you cannot. So honestly बताना पड़ेगा ये है. Done. Okay. Number 1 question is, what is the maximum money you made through freelancing till now? So are you asking like per client or no, are you it's saying like complete total आज तक का. चलो let's say consider month. Per month. हाँ. Per month I make around 2.5 lakhs. That's what it's maximum. Yeah. Okay. How did you make that money? Like through diversifying my services. तो a lot of people believe कि तुम एक सर्विस ऑफर करते रहोगे तो ही like you'll be able to scale. ठीक है? But then I like think from a perspective कि I am young now. If I don't learn, what's the point of not following the traditional route? फिर तो मैं भी लोगों के जैसे जॉब कर लूँ और कमा लूंगी ना, 4 साल में वहां तक पहुंच ही जाऊंगी, 2 लाख मिल ही जाएगा सैलरी. बट तो I want to like, so I also do script writing, I do social media management, I do LinkedIn personal branding. तो like अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और बोलता है कि मुझे ये चाहिए और मुझे लगता है कि ओके ठीक है, there is a learning scope here, मेरा एकदम भी ऐसा मेंटल वो नहीं जा रहा है and I can do it, तो I take that client even if वो अगर सर्विस में ऑफर नहीं कर रही होती फिर भी. Wow. Right? तो I also believe in a lot of collaboration जिसकी वजह से I'm able to close a lot more deals. तो अगर कोई client मेरे पास organic marketing के लिए आ रहा है and they also tell me कि उनको future में paid marketing की needs है, I connect with a paid marketer और मैं collaborate करके उन्हें एक ज़्यादा amount में service offer करती हूँ. तो उनको ज़्यादा value भी add हो रही है and I am able to charge a lot more than what I would have charged with just one. So this is what I advise to a lot of people कि build a stack of skills. Don't just build like one skill और उसके around मत position करो.
एंड आई टेल देम टू बिल्ड लाइक अ स्टैक ऑफ स्किल्स जिसको तुम लाइक डाइवर्सिफाई करके सर्विस दे सको. अगर क्लाइंट तुम्हारे पास ए चीज के लिए आ रहा है, आस्क देम इफ दे नीड बी आल्सो एंड देन गिव अ पैकेज ऑफ दैट टुगेदर. So you mean like, but then right now in that 2.5 lakhs, what's the exact service? Like, is it social media? So like, what's the exact? So it's social media management. It's LinkedIn personal branding. It's also, I also do like a lot of shoots. So I like creating video content myself. So recently I closed a project with housing.com. हाँ, oh wow. Housing.com के वो जो होते हैं ना anchors जो property दिखाते हैं. हाँ. So I'm also interested in acting, which I look forward to exploring someday. So that's why like I took that project. So I'm also a creator for a lot of brands. Okay. So there was this brand called MakeMyMeal.ae. वो Dubai based service brand है. उनके साथ I used to create videos for them. उनके scripts आते हैं ना, I just have to be a creator and presenter basically. Wow. So I also work as a content presenter. And this also diversifies into UGC creation. Oh, तो जिसके बारे में इंडिया में भी ज्यादा बात नहीं होती है. And I'm also building a course on this. Wow. तो UGC वीडियोस जो आजकल एड्स आप देखते हो, राइट? तो आजकल वो ट्रेडिशनल स्टूडियो एड्स इतना रोआस नहीं देते जितना यूजर जनरेटेड कंटेंट दे रहा है, राइट? तो आई डोंट थिंक कि वो ना मेरा, तो बेसिकली इफ आई डिवाइड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट आई गिव. एक जिससे पैसा आता है और एक जिससे मेरा क्रिएटिव हंगर सैटिस्फाई होता है, राइट? तो स्क्रिप्ट राइटिंग इज दैट फॉर मी, यूजीसी इज दैट फॉर मी. भले ही इसमें मुझे इतना पैसा नहीं मिलता, बट आई डू दैट टू कीप माय क्रिएटिविटी एंड माय, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपका वर्क रेपिटेटिव हो जाता है एंड दैट्स वेयर मोस्ट पीपल गिव अप. तो मैंने वो रिपीटेटिवनेस को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं मैं कम पैसे में ले रही हूँ, बट जिससे वो मेरे को क्रिएटिव जूसेस मिल रहे हैं, उससे आई विल बी एबल टू क्लोज अ लॉट मोर क्लाइंट्स एंड मेक अ लॉट मोर मनी. सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. Okay, last two questions I have. Yeah. What is the most costliest purchase you have? Most costliest purchase I would say is my MacBook. Okay. उसके बाद मेरा आईफोन. Okay, perfect. वही खरीदा है. खरीदा है. What is the purchase that you regret the most? What I regret the most? यार, to be honest, वो regret है भी और नहीं भी है. It is also my iPhone only. Because दिक्कत ये होती है ना कि एक तो चार्जिंग का बहुत इशू है. Now a person who is working on social media, मेरे सारे क्लाइंट्स ही सोशल मीडिया पे, तो उनको दिन भर फोन पे रहना होता है. तो अभी वो चार्जिंग ही, मैं आपने देखा होगा, मैं जहाँ जाती हूँ अपने साथ कुछ और कैरी करूँ ना करूँ, मेरे साथ मेरा चार्जर जरूर रहेगा. तो regret. iPhone वालों सुनो, ये चीज सॉर्ट करो, बहुत त्रास है भाई. जो लोग हाइप करते हैं, ठीक है, इट्स गुड फॉर कैमरा, एक तो स्टोरेज. भाई जिसका वीडियो कंटेंट क्रिएशन, हाँ, कहाँ से क्रिएट करूँ मैं वीडियोस? जगह ही नहीं है. वही फोटोज खींचू कि शूट करूँ भाई. ट्रू. तो एक वो चीज है. तो ऐसे मैंने आज तक ऐसे कोई इम्पल्सिव परचेजेस नहीं किए जिसको मैं वो करूँ. लाइक आई एम वेरी माइंडफुल ऑफ द मनी दैट आई स्पेंड. बट या दैट लाइक, और अगर वैसे बोला जाए रिग्रेट्स, तो वैसे तो बहुत सारे कपड़े हैं भाई, मैं जो ले लेती हूँ और मैं पहनती ही नहीं हूँ कभी लाइफ में. तो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट आई हैव. Wow, yeah. Okay, so it's the end of Money Confessions. Yeah. And now we are starting this next section, which is budget chat. Okay. Okay. So it's like, now I'll give you 10 minutes. And in that 10 minutes or 5 minutes, you have to tell me how you will do it. ठीक है. I will give you 75,000 every for next 10 months. It means you have a job. Okay. You are doing the job, and I'll give you 75 every month. In that 75, now you shifted to Mumbai. You are living in Mumbai. In 75, you have to allocate the budget to rent, everything. Maybe you can change your answer because abhi jo kar rahe ho shayad usse alag, because it's 75 only now. 75, and then you have to, in next 10 months, you have to use that money, or you have to use that time, or everything, whatever you can do. You have to double that amount of money. But that 75 will be 75 itself. But you have to create something, scenarios around you where that 75 is coming, but through that 75 you have to make that next double, or you have to double that amount. 1.5. Now after 10 months you have to make 1.5 every month. This 75 will be only 75. Now to figure out next 75 wala. Understood. So how you will do it? So अगर आप 75 दे रहे हो मुझे, लाइक ठीक है, फर्स्ट मंथ में तो आई विल स्टिल फिगर आउट कि मुझे करना क्या, राइट? तो फर्स्ट मंथ तो 75 में से 30 में मैनेज कर सकती हूँ अपना खर्चा. मुंबई में रह के भी अब मुझे समझ में आ गया कि किधर कहाँ रहना है, कैसे. हाउ मच रेंट यू कैन एक्सपेक्ट कि अब वो 75 में से इतना रेंट मैं पे करूं? मैं शेयरिंग में रह लूंगी किसी के साथ, तो आराम से 15,000 में आई फाइंड समथिंग. ओके, परफेक्ट. ठीक है. तो और बाकी खर्चे वगैरह लेके मैक्सिमम 30 में मैं कर लूंगी सब कुछ, राइट? तो 45 मेरे पास अभी भी सेव हो रहा है. उस मंथ चलो मैं 10,000 की कोर्सेज ले लूंगी इधर उधर, कि ठीक है मुझे फ्रीलांस करना है या मुझे स्टॉक मार्केटिंग करना है या जो भी करना है, मुझे जो, मैं एक लिस्ट ऑफ स्किल्स बनाऊंगी जो मुझे इंटरेस्ट करता है. भले मुझे आता नहीं है वो, पर मैं लिस्ट बनाऊंगी कि हाँ ये मुझे कर सकती है. पैसा भी है, मतलब हाँ पैसा भी है. लाइक आई विल सर्च ऑन फाइवर एंड नॉर्मल इंस्टाग्राम पे कि क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, एंड आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स
that I can do, right? Now उस list में I will consider freelancing, I'll consider content creation, and I will consider of course this video creation thing also, right? अभी why will I not choose the rest two options? I'll tell you that, right? I'll not choose content creation because उसके लिए again I will have to spend a lot of resources पहले, और जो ROI है वो मुझे बाद में आएगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म गेम है। हाँ, लॉन्ग टर्म गेम है, कंटेंट क्रिएशन शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, और उससे आप ROI एक्सपेक्ट करके करोगे तो आपका कभी कंटेंट चलेगा नहीं, चलेगा। आई एग्री, आई एग्री। तो कंटेंट क्रिएशन आई रिजेक्ट कि ठीक है, तब बहुत पैसे आ जाएंगे तब शुरू करूंगी, ठीक है? अभी तीसरा चीज था वीडियो, जो मुझे इंटरेस्ट है कि मैं दूसरे ब्रांड्स के लिए वीडियोस बनाऊं, राइट? वो होगा, बट ऑल्सो दैट हैपेंस थ्रू अ लॉट ऑफ नेटवर्क, और अभी मैं मुंबई में नई हूँ तो मुझे मीडिया हाउसेस, प्रोडक्शन हाउसेस, एजेंसी से इतना नेटवर्क नहीं है, तो अभी इमीडिएटली तो मैं नहीं करना शुरू कर सकती। दैट आई कैन कंसिडर इन वन ऑफ माय इनकम सोर्सेस लाइक 3 months 4 months डाउन द लाइन, राइट? तो अभी I'll start freelancing. Second month है because first month is already. First month I'm figuring out, right? तो अभी second month 30,000 expense जा रहा है again. I will take 10,000 का courses around freelancing, और freelancing का लिया और एक skill का लिया. Like suppose if I'm doing social media management, I'll take a social media management का course and a freelancing का course. राइट? अभी हो सकता है कि मैं YouTube से फिगर आउट कर लूं, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फ्री, बट व्हाई विल आई टेक द कोर्स? क्योंकि मुझे अपना टाइम बचाना है, ठीक है? मुझे एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट होके मिल जाएगी। ऑल्सो जब यू आर टेकिंग अ कोर्स, यू ऑल्सो गेट अ मेंटर, तो आपको क्वेश्चंस पूछने का वो रहता है। यूट्यूब पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, फिगर आउट करना पड़ता है खुद से। तो मैंने कोर्स ले लिया, अभी थर्ड मंथ से स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है? थर्ड मंथ में आई एम स्टार्टिंग डूइंग फ्रीलांसिंग। चलो, मुझे फर्स्ट मंथ कोई क्लाइंट नहीं मिला, फोर्थ मंथ में आई क्लोज 2 clients। At least you can. हाँ, 2 clients which service में what do you think? सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही मैं पकड़ रही हूँ, क्योंकि अभी हर बिजनेस को सोशल मीडिया चाहिए, राइट? So it's like it's the most needed one. Yeah. So like there's a high chance that you can close it. अभी मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकती थी, बट आई नो कि आई एम नॉट गुड एट टेक्निकल स्किल सेट्स लाइक दैट, तो मैं नहीं कर सकती। वीडियो एडिटिंग मेरे लिए कभी नहीं आएगा। तो आई एम डूइंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आई क्लोज 2 clients एंड बेसिक, आप शुरू सोशल मीडिया कर रहे हो ना, तो आपको 15,000 इज द बेसिक रेट दैट यू कैन चार्ज। तो चलो, मैं 15,000 के 2 clients पकड़ रही हूँ। I've started making 30,000 per month. No, but again your college is also there because you are now shift, because I think like हाँ, कॉलेज वगैरह चल रहा है, तो भी मैनेज हो जाएगा। हाँ, like why not? सोशल मीडिया के लिए ऐसा है कि आप एक बार स्ट्रैटेजी बनाओ, आपका स्टार्टिंग 1 हफ्ते में बहुत काम जाता है कि आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप उस टाइम में वीडियोस क्लाइंट से ले रहे हो, उनको वीडियो शूट करने के डायरेक्शन दे रहे हो, ग्राफिक्स बना रहे हो, सब कुछ हो रहा है। बट देन एक बार वो हो गया है ना, तो आप वीकली बेसिस पे बैच क्रिएट करके शेड्यूल कर सकते हो, तो आपका पूरे वीक का कुछ काम नहीं रहा। आपने एक सैटरडे बैठे, आप सैटरडे कंटेंट क्लाइंट से आ गया है, आपने एडिट वगैरह सब कुछ किया, कैप्शंस लिखे, शेड्यूल कर दिया, हो गया काम भी। लाइक इट्स नॉट इजी, आई वुड से, बट हां, इट्स लाइक, तो इसी वे में इफ आई एम गेटिंग इट टू दैट पॉइंट, सो हम 75 जो मैं आपको दे रहा था, 30 ऑलरेडी 4th मंथ में बन गया है। सेम प्रोसेस अगर और 3 महीने भी फॉलो कर ली, तो क्लाइंट डबल भी तो होंगे ना, तो लाइक इट्स वेरी इजी, तो लाइक यू कैन डू इट। और एक बार एक्सपीरियंस आ गया तो आई विल नॉट चार्ज 15,000 ना, आई विल चार्ज मोर देन दैट। I will start at least charging 25,000 after 3 months of experience. But like as per the मैंने जो budget challenge दिया था, according to that 75 में से still for that 10 months you will spend 30K, right? हाँ. वो 30K चलो कर लेते हैं, 40K तक जा सकता है, but then the remaining amount should stay with you. So like in the later stages, emergency fund रहे, कुछ हुआ, because जैसे आपने सिनेरियो बताया, कुछ महीने पैसा आ जाता है, तो कुछ महीने नहीं आता है। तो वो that is getting accumulated only, like वो 40-30 जो भी बच रहा है वो हर month accumulate हो रहा है। वाओ, परफेक्ट। तो अभी अगर मैं 15,000 में फर्स्ट मंथ में 2 क्लाइंट क्लोज कर लेती हूँ, अभी मुझे क्लाइंट क्लोज करना आ गया और उनके रिजल्ट्स मेरे पास आ जाएंगे, वो 1 महीने में आई विल गेट रिजल्ट्स फॉर देम, एंड वो रिजल्ट्स आ गया, मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया। अब आई विल स्टार्ट पिचिंग टू एटलीस्ट 30 पीपल एवरी सिंगल डे। ओह, 30 पीपल एवरी सिंगल डे। तो अगर मैंने 30 पीपल, और मुझे ऐसा तो नहीं है कि पूरे मंथ में 3 रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, सॉरी 3 क्लोज नहीं कर पाऊंगा। 30 अगर मैंने पिच किया तो मंथ में कितना हो रहा है, 900 से भी ऊपर जा रहा है, राइट? बट देन आपके पास काम भी तो चल रहा है, तो काम करोगे कि पिच करोगे? इट्स लाइक आउटरीच दिन में आपको ना आधा घंटा भी नहीं लगेगा करने में, अगर आप ढंग से कर रहे हो तो। अच्छा, सिर्फ आपको वेज नहीं पता। हाँ, लाइक लोगों को यही होता है कि वो मेरे लिए भी था अभी तक, लाइक लास्ट 2 मंथ से आई वाज लाइक आउटरीच क्या होता है, ऐसा मतलब बहुत हाइप कर दिया लोगों ने और बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया उस कॉन्सेप्ट को। बट आप एक नॉर्मली छोड़ो, आप टूल्स वूल सब छोड़ो, आप बैठो एक दिन, आप एक लिस्ट बनाओ लोगों की जिसको आपको पिच करना है, राइट? आप 30 लोगों की, आप अगर आपको मान लो 1 हफ्ते में 150 लोगों को पिच करना है, राइट? 5 दिन आप 30 करके कर रहे हो, 150 लोगों को करना है। अब 150 लोगों की लिस्ट बना लो, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, गूगल से सर्च कर करके बना लो। आपको लगेगा उसमें 2 घंटा 2.5 घंटा मैक्सिमम, राइट? एक दिन आपने वो टाइम दे दिया, आपका 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस वो रेडी होना चाहिए। हाँ, वो रेडी करने में टाइम लगेगा, कस्टमाइज कर लो अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग। तो एक बार आपका वो मैसेजेस है तो आपको दिन में 30 लोगों को भी पिच करना है, आप फटफट वो मैसेजेस भेजना शुरू करोगे, आधे घंटे में हो जाएगा काम। वाव 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 वाव।
वाह, ये है भाइयों जो हमें नहीं समझ रहा, आपको नहीं समझ रहा और अभी हमें समझ आया है और डिटेल समझेंगे डेफिनेटली थ्रू योर इंस्टाग्राम, थ्रू योर कोर्स, एवरीथिंग जो भी अवेलेबल है. बट अगेन नाउ मूविंग आउट टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस होल शो, इट्स टुवर्ड्स कम्युनिटी. सो हमने कम्युनिटी पे जब आप आने वाले थे तो हमने मैसेज पुट आउट किया था कि हाय आई एम इंटरव्यूइंग नॉट श्रुति, नेम हम रिवील नहीं करते, अच्छा, बट हम कहते हैं कि हम फ्रीलांसर को रिवील कर रहे हैं, मतलब वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं काफी सारे. ओके, तो अब मैं वो क्वेश्चंस आपके लिए रीड करूंगा एंड आई वांट टू आंसर दैट, बट आई नीड योर एन आंसर टू दैट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज I want to know how she reach out to big brands and big clients. And the name of the person is Ansh Verma. See, the process, अभी ना इसने big brands बोला है, but लोग मुझे आके पूछते हैं हाई टिकट क्लाइंट्स कैसे ढूंढते. तो पहला क्वेश्चन जो तुम खुद से पूछो कि तुम्हारी सर्विस हाई टिकट है क्या. Like, do you have like a high ticket service? See, high ticket clients को ना कुछ नहीं चाहिए होता, उनको a strong portfolio चाहिए होता है जिसमें आप और आपका ऑफर जो आप पिच कर रहे हो वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप एक ROI दे रहे हो. सपोज आप एक हाई टिकट ब्रांड हो, मैं आपको पिच कर रही हूँ, विल यू बी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग अ सिस्टम वेयर आई हेल्प यू मेक 3x of the amount that you're spending in me in the next 90 days. ओके, ठीक है, या फिर आई हेल्प यू सेल 50 डिजिटल प्रोडक्ट्स इन द नेक्स्ट 90. तो इट शुड बी अ क्लियर ROI. या फिर आई टेल यू आई हेल्प यू टू ग्रो 10,000 फॉलोअर्स इन नेक्स्ट 90 डेज. तो एक ROI ड्रिवन सर्विस होनी चाहिए. पहले तो आप एक अपना ऑफर बनाने पे फोकस करो. आई विल से 100 million offers by Alex Hormozi is the perfect book for it. Like I still go back to it whenever I have to recreate my offers. That's like a very very good book that I have read. उससे you make your offers. Okay, Daksh Khare पूछ रहे, does she delegate some of her freelance work? If yes, how is she able to delegate while ensuring quality and deadlines? Right. So अभी I'll tell you hiring is very tough. Like और more than hiring, to make people stay with you, जो आपके साथ लॉयल रहे is very tough. We agree. क्योंकि नहीं होता है, लोग मतलब 4 महीने के बाद बोलेंगे कि नहीं यार अब नहीं होगा, राइट. तो पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं लोगों पे बहुत डिपेंडेंट हो जाती है. अगर मैं एक टीम मेंबर हायर कर रही हूँ, आई यूज्ड टू अज्यूम कि नहीं ये तो है. तो अभी आई एम ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर गुड पीपल. अभी मैं नेटवर्क जब इवेंट में जाती हूँ, कोई बोलता है इफ दे आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी, आई आस्क देम फॉर देयर पोर्टफोलियो और मैं एक डेटाबेस मेंटेन करके रखती हूँ. तो व्हेनेवर आई नीड समवन आई गो बैक टू दैट डेटाबेस कि हाँ ठीक है, आई कैन हायर दिस पर्सन फ्रॉम दिस स्किल, राइट. तो आई डेलीगेट लाइक अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट वर्क क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ एंड आई लाइक टू मोर बी ऑन द फ्रंट फुट एंड क्लोज क्लाइंट्स. एंड देन ऑफ कोर्स लाइक मैं भी उसमें, क्योंकि I don't want to like just take the, क्योंकि मेरे को पता है वो मेरा जो टच है सर्विस का वही मेरा USP है, तो वो नहीं जाना चाहिए. तो आई मेक श्योर कि वो जो काम आता है उनसे, आई डोंट जस्ट सेंड दैट डायरेक्टली टू द क्लाइंट. मैं वो चेक करती हूँ खुद का, उसमें जो मेरे को इनपुट्स है वो ऐड करती हूँ. ऑल्सो आई ट्रेन माई टीम मेंबर्स. आई लाइक टू हायर बिगिनर्स जो एकदम भी बिगिनर नहीं है बट मिड लेवल पे है. तो उनके साथ ये होता है, दे आर वेरी लर्नेबल एंड अडेप्टेबल टू योर यू नो द प्रोसेसेस. तो आई ट्रेन देम विद माय ओन थिंग. आई गेट ऑन कॉल्स विद देम, आई मेक देम अंडरस्टैंड कि ये चीज ना ऐसे 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 करना है एंड ऐसे 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 क्यों करना है. आई ऑल्सो टेल देम दैट. तो आई हैव हैड इंटर्न्स जो मेरे साथ 5,000 पे शुरू किया था एंड नाउ लाइक आई पे देम 35,000 पर मंथ. तो इस लेवल का ग्रोथ दे हैव विटनेस्ड थ्रू मी. Like I'm not giving credit myself, but like that much. But that's what I like to train my team. And that's how you can retain people. Yeah. That's so true. Okay, next question is by Akshad. What tools and resources do you use to enhance your productivity and efficiency as a freelancer? Notion एक तो live चलती है. भाई जीवन Notion पे चलता है भाई. वही तो Notion is definitely like it keeps you so organized first of all, and then see I work with social media के clients, right? तो most of them they don't like to use Notion and all of these softwares. They want their calendars on Google Drive only. तो Drive is also a platform that I keep very organized क्योंकि उस पे मुझे बहुत काम होता है. तो Google Drive, Notion, and then to like kind of to make my to-do list I use like a lot of apps. अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहे. हाँ, but कोई बात नहीं. You can to-do list वाले apps use. You can share it on the community as well. Yeah, absolutely. मैं उधर list डाल दूँगी जो भी apps के मैं use करती हूँ. And then of course AI tools अभी like initial research अगर मुझे चाहिए या मुझे मेरा माइंड ब्लॉक हो रखा है और मुझे आइडियाज नहीं आ रहे, तो आई जस्ट पुट इट ऑन ChatGPT. मेरे को पता है वो जेनरिक आइडियाज देगा, बट उधर से मुझे कुछ तो ऐसा दिख जाएगा जो मेरे ब्रेन को इंस्पायर करेगा एंड आई विल कम अप विद आइडियाज. तो आई जो नो मैटर हाउ मच पीपल से कि AI जॉब लेगा या जो भी, बट लाइक आई वर्क विद अ कंपनी जिधर AI की वजह से वी हैव 35 ओपनिंग्स. तो इट्स लाइक AI also if you make it use it in your favor, of course that can like save a lot of time and it can also see, to be honest, what I think is AI is not your competitor until the point you can use it for yourself very amazingly. Absolutely. So I also used to convert clients. मैं तो पूरे to be honest chat पूरी
कर लेता हूँ कभी-कभी कि AI को पूछ के कि देखो, क्योंकि एक आइडिया आ जाता है हाँ, जैसे आपको समझ आता है। बट अगेन योर पॉइंट इज कि हाउ यू कैन ऐड दैट ह्यूमन एलिमेंट टू इट व्हिच इज योर स्किल Yeah, सेट, absolutely. so it saves a lot of time. तो ChatGPT जो Yeah, एकदम Bard, वायरल टूल है, Big but Bear, वही it's I use it it's a good. lot. Perfect. Next, last questions I have. I think we already covered all of them. Chirag Mali ne pucha tha what was her mindset. We already discussed. We discussed, Her journey after getting his class. As he's mentioning his, he don't know who she hai ki he hai. So after getting his first client, already discussed. Her first bad experience, already discussed. Her first big breakthrough, already discussed. So I think later on, Kavish also asked that question, but I think the same. I think we discussed everything. Great. Wow, it's lovely, and thank you so much, guys, for asking that question. I hope everything was answered. नहीं मिला तो I'll be नहीं in मिला the तो community. you will, Post so that. she will be there in the community. Yeah. Thank you so much, Shruti, for Thank being you for here. having me, It's like such a lovely conversation, and I hope like very soon. अभी तो 2.5 लाख चल रहा है. Later on अब हम जब next मिलेंगे तब 5 लाख वाला वीडियो बनाएंगे. दही शक्कर. No, that's it. Thank you so much for coming to this episode. Thank you so much, guys, for watching this episode. अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना, so to be honest, you are already very serious to do whatever you want to. You're already serious with your money. You're already serious with your decisions. Already serious with your finances. Do join our community, guys, and do follow her on Instagram, on LinkedIn, everywhere she is there. And do also know she will already very soon start her own YouTube channel. Yeah. जहाँ पर बड़ा content भी आएगा. तो college के बाद. Yeah. Thank you so much, Shruti, again. It's lovely talking to you. Thank you for having me. Yes.